I Kindred. I Rizwan. I Pari. And I Alam. We welcome you all. On behalf of Class 9C, along with class teacher Sir Hemant, we wish dear Principal, Reverend Father Prashant, Supervisor Teacher Dolly, Vice Principal Sister Shiny, all the teachers and students, a charming, inspirational, supernatural, progressive and beautiful morning. I call upon all the girls of class 9C, our class teacher Sir Hemant and all the respected dignitaries to light the traditional lamp and to garland the portrait of Dr. Babasaheb Ambedkar, the architect of the Indian Constitution. Freedom of mind is the proof of one's existence. I request Tasbia, Tejaswini and Pari to welcome the dignitaries on the dais by presenting a copy of Constitution to the dignitaries. Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. Dear friends, today is 26 November. This is a very special day for all the citizens of India. This day is celebrated as Constitution Day, which is called Samvidhan Divas in Hindi. And the topic for today's assembly is Constitution Day. What is so special about this day? What is its importance? So, to throw some light on the topic, I would like to invite Pari to express her views on the topic. Good morning everyone. I am Pari Raichura. I am here to speak about a very important occasion in our nation's history, that is Constitution Day. This day is celebrated on November 26th. The Constitution Day. The Constitution Day is dedicated to commemorating the adoption of Constitution. The Constitution came into effect on January 26, 1950.
The purpose of celebrating this day is to remind us of the values enshrined in our Constitution. Here's why it is important. To spread awareness about the importance of the Constitution. It upholds justice, liberty, and equality for all citizens. To acknowledge the contribution of Dr. B.R. Ambedkar, the architect of Constitution. To encourage citizens to play their role in strengthening India's democracy. To create awareness about the fundamental duties enshrined in Constitution. There is a remarkable difference between the Independence Day, which is celebrated on 15th August, and the Constitution Day, that is celebrated on 26th November. But unfortunately, due to lack of knowledge, many Indian citizens celebrate the Constitution Day and Republic Day like Independence Day. In many parts of country, we see the people enjoying the day with patriotic sense, playing patriotic songs, which has nothing to do with the Constitution and as well as the Republic Day. Thank you, Pari. They cannot make history who forget history. The Indian Constitution is the biggest handwritten constitution in the world. So it is impossible to elaborate all the parts of the Constitution. Hence, today our class would try to focus only on some important parts of the Indian Constitution. Life should be great rather than long. Dr. Baba Saheb Ambedkar ने BA, MA, MSc, DSc, PhD, LLD, DLET, बार एट लॉ और ऐसी 32 पदवियां देश विदेश से हासिल की थी। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 3 साल में 29 पदवियां प्राप्त की और ऐसा करने वाले पूरे विश्व में यह पहले और आखिरी व्यक्ति है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc पदवी प्राप्त करने वाले प्रथम व आखिरी भारतीय है Dr. Bhimrao Ambedkar. The most effective way to fight inequality is through education. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 9 भाषाओं पर प्रभुत्व था। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पारसी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच और पाली। उन्होंने उनकी शिक्षा का उपयोग सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों की प्रगति और भलाई के लिए ही किया है। No society can be free if it denies basic rights of any of its members. भारत देश का संविधान लिखी सभी को मूलभूत हक, अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए। आज मैं आपके सामने जो बोल रही हूँ वो संविधान के भाषण स्वतंत्रता की वजह से ही है। सभी धर्मों को उसके तत्वों के अनुसार आचरण करने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब ने संविधान के द्वारा दिलवाया है। इसीलिए संविधान सर्वोच्च है। क्या आपको नहीं लगता जिस संविधान ने हम सभी को इतने हक दिलवाए, ऐसी संविधान की किताब सभी घर में होनी ही चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होनी ही चाहिए। और इसीलिए सरकार ने हर घर संविधान यह संकल्प किया। जरा गौर से देखिए स्टेज के तरफ। आपको क्या लगता है? कहीं आपको यह लग रहा है कि ये हमारा राष्ट्रध्वज ही तो है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे हमारा राष्ट्रध्वज तब तक नहीं कहते जब तक यह अशोक चक्र इसके बीच में यहाँ पर ना हो। हाँ, अब इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा प्राप्त हुआ है और जिसका सभी भारतीय सम्मान करते हैं। इस अशोक चक्र को संसद से मान्यता दिलाने का काम डॉक्टर बाबा साहेब ने किया और यह चक्र चक्रवर्ती सम्राट अशोक का प्रतीक है, जिसने बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाया था। धन्यवाद।
educated individual is a powerful agent of social change. Dear students, our class students will now present a skit before you related to the Constitution Day. आज है संविधान दिवस। सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या है संविधान, इसका क्या महत्व है भारत देश के नागरिकों के लिए। संविधान जो महज एक किताब नहीं, भारत की आत्मा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सबसे पहले इस सवाल का जवाब जान लेते हैं कि आखिर संविधान है क्या। संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के तमाम अंगों को कामकाज की शक्ति देता है और उनका दायरा भी तय करता है। यानी देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरह से काम करेगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान से तय होता है। मतलब देश में जो कुछ भी होगा संविधान के मुताबिक होगा। आजादी के आंदोलन के दौरान ज्यादातर बड़े स्वतंत्रता सेनानी कानून के जानकार थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत में शासन व्यवस्था के लिए नियम बनाने की जरूरत है। वो चाहते थे कि शासन व्यवस्था के नियम तय करने के लिए भारत के लोगों की एक संविधान सभा का गठन हो। आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारत की आजादी की संभावनाएं बढ़ने लगी, तब संविधान सभा का गठन किया गया। Initially, the Constituent Assembly had 389 members, and after division of India, it reached to 299 members only. On August 29, 1947, Dr. Babasaheb Ambedkar became the chairman of the drafting committee. The other members were there in the committee, but due to the death of some members and some members left the committee due to some other reasons, finally Dr. Babasaheb Ambedkar alone continued to work continuously. He took up the work of the Constitution to bring all the citizens into the mainstream to raise the standard of living, and hence only Dr. Babasaheb Ambedkar is called the father of the Constitution. सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे से संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की कुल 165 दिन बैठकें हुई। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगर नरसिंह राव थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया। इस तरह से उसे भारत के संविधान का दर्जा मिल गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई। इसमें जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। वंदे मातरम को बराबर सम्मान के साथ राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 से संविधान देश में पूरी तरह लागू हो गया। डॉक्टर अंबेडकर समेत संविधान सभा के कई और सदस्यों को भी दूसरे देशों की शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी थी। नतीजा रहा अलग अलग देशों की व्यवस्था के ऐसे हिस्सों को संविधान में जगह देना जो भारत के लिए सही लगे। मसलन राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख और सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाना अमेरिका से लिया गया। संसदीय चुनाव, संसद में 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था, केंद्रों को राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला संघीय ढांचा कनाडा से, और वेस्टमिंस्टर प्रणाली यानी संसद के लिए जवाबदेह मंत्रिमंडल का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था है। सभी लोग भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य का नागरिक नहीं होते। नागरिकों को देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर कहीं भी आने जाने, बसने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हासिल है।
भारतीय संविधान की एक और विशेषता है वयस्क मताधिकार। 18 साल या उससे अधिक उम्र के हर नागरिक को मतदान के जरिए अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। यहाँ धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, लिंग आदि के भेदभाव के बिना हर नागरिक को वोट की शक्ति दी गई है। सबके वोट का महत्व एक बराबर है। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन वहां की हेड क्वीन है। क्वीन की जगह पर हमारे देश में राष्ट्रपति का पद माना गया है। भारत में राजशाही नहीं है। यहाँ किसी राज परिवार का व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर देश का सर्वोच्च पद हासिल नहीं करता। देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार देना संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो हर नागरिक को हासिल है। इनका हनन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार मसलन कानून की नजर में बराबरी, अपनी बात कहने की आजादी, देश में कहीं भी जाने और बसने की आजादी, सम्मान से जीवन जीने की स्वतंत्रता आदि भारत में हर नागरिक को ये हासिल है। इंडिया दैट इज भारत। जी हाँ, यही भारत का आधिकारिक नाम है। संविधान के पहले अनुच्छेद में इसी नाम का जिक्र करते हुए भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। तो क्या है इंडिया दैट इज भारत? संविधान निर्माता जैसा भारत चाहते थे, उसी के मुताबिक उन्होंने संविधान बनाया। पूरा संविधान जिन विचारों पर आधारित है, उसका परिचय देती है संविधान की प्रस्तावना। देश क्या है, कैसा है, इसके शासन का आधार क्या है, नागरिकों से क्या अपेक्षा है, हर बात इस प्रस्तावना में है। What is preamble? The preamble of Indian Constitution is an introductory statement that outlines the objectives, principles, and ideas upon which the Constitution is based. It declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic, and republican nation, and emphasizes justice, liberty, equality, and fraternity as its core values. चलो इस संविधान की उद्देशिका को एक बार पढ़ते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. The preamble states that the Constitution derives its authority from the people of India. इसीलिए इस उद्देशिका की शुरुआत ही हम भारत के लोग, we the people of India, ऐसे की गई है। इस संविधान को भारत के लोगों ने भारत देश के लिए बनाया है। हम सबसे पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। इसीलिए संविधान सभी धर्म और धार्मिक ग्रंथों के ऊपर है। इस प्रस्तावना का एक एक शब्द भारत का परिचय देता है। सबसे पहले लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब ऐसा देश जो किसी के अधीन नहीं है, जो पूरे समाज के कल्याण के लिए काम करता है, जहां शासन हर धर्म को समान दृष्टि से देखता है, जहां लोकतंत्र है, लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।
आगे सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का जिक्र है। साफ है कि भारत में हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर एक जैसा अवसर देना, विषमताओं को दूर करना भारत की शासन व्यवस्था का आदर्श माना गया है। इसके बाद नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने की बात कही गई है। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मुताबिक भारत के सभी नागरिकों को अपनी बात कहने, अपना धर्म मानने की आजादी है, सबका सम्मान है और सबको बराबरी का दर्जा हासिल है। इस प्रस्तावना को सभी मौजूदा और भावी नागरिकों की तरफ से संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। भारत को शासन व्यवस्था देने वाला, हर नागरिक को बुनियादी हक देने वाला संविधान भारत की आत्मा है और इस आत्मा का परिचय उसकी परिभाषा है, संविधान की प्रस्तावना। देश को संविधान देते वक्त संविधान सभा के सदस्यों ने जो शपथ ली उससे हम सब बंधे हैं। हमारा फर्ज है कि हम संविधान के बुनियादी मूल्यों को समझें, उनका सम्मान करें। अब हम एक एक करके नागरिकों को हासिल मौलिक अधिकारों की बात करें। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। भारत उन देशों में शामिल है जो स्पष्ट रूप से अपने नागरिकों और भारत में रह रहे किसी व्यक्ति के सामान्य मानव अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है, यानी ऐसे अधिकार जिन्हें किसी नागरिक से छीना नहीं जा सकता। मौलिक अधिकारों में सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इस अधिकार का जिक्र है। अनुच्छेद 14 है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके मुताबिक हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है, किसी को विशेष दर्जा हासिल नहीं है, सबको कानून का एक समान संरक्षण हासिल है। अनुच्छेद 15 के मुताबिक भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसके धर्म, भाषा, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब हर नागरिक को एक समान अवसर मिलेगा। किसी के साथ भी सिर्फ इस वजह से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किसी खास धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग का है। यहाँ आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जब संविधान जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तब आरक्षण की व्यवस्था इस देश में क्यों? आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। अगर समाज का कोई वर्ग पहले से असमानता की स्थिति में है, तो उसे दूसरों की बराबरी पर लाना भी सरकार का संवैधानिक दायित्व है। यही आरक्षण का आधार है। अनुच्छेद 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों को खत्म किए जाने की बात कहता है। आजादी से पहले अंग्रेजों के दिए सर, खान बहादुर, राय बहादुर, राजा, महाराजा जैसी उपाधियां आपने सुनी होंगी। आजाद भारत में इन्हें खत्म कर दिया गया है। अब ऐसी कोई उपाधि ना तो सरकार किसी को दे सकती है, ना भारत का कोई नागरिक विदेशी सरकार से इन्हें ले सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे जो सम्मान देती है, उन्हें कैसे मान्यता मिल सकती है? कि पद्म पुरस्कार या भारत रत्न नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान। ये कोई उपाधि नहीं जिसे लोग अपने नाम के आगे या पीछे लगाते हैं और दूसरे के मुकाबले अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। योगदान के लिए मिलने वाले सम्मान को अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। अब बात स्वतंत्रता के अधिकार की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के सबसे
अहम बिंदुओं में से एक है। स्वतंत्रता के कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को हासिल है, जबकि कुछ भारत की धरती पर रह रहे हर व्यक्ति के लिए है। सबसे पहले बात अनुच्छेद 19 की। इस अनुच्छेद के तहत कई तरह के अधिकार आते हैं। 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जिस पर हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। ये अनुच्छेद हर नागरिक को अपनी बात मौखिक, लिखित और चित्र के जरिए या किसी भी दूसरे तरीके से अभिव्यक्त करने की आजादी देता है। 19(1)(b) से लेकर G तक 5 और अहम अधिकार हैं। ये अधिकार हैं शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं इकट्ठा होने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी, भारत के किसी भी राज्य या शहर में बसने की आजादी, रोजगार या व्यवसाय चुनने की आजादी। अब बात एक बेहद अहम अधिकार की, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत दर्ज ये अधिकार सिर्फ शारीरिक रूप से जीने तक सीमित नहीं है। इसकी सही व्याख्या है गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, साथ ही अल्पसंख्यकों को लेकर जो विशेष अधिकार संविधान में दिए गए हैं उनकी भी बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है। इसके तहत हर नागरिक को अपनी अंतरात्मा के मुताबिक धर्म को मानने, उसकी परंपराओं का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई नागरिक चाहे तो वो धर्म को ना मानने या नास्तिक बने रहने के लिए भी स्वतंत्र है। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा या संस्कृति के संरक्षण के लिए स्कूल, कॉलेज और दूसरी संस्थाओं को बनाने और चलाने का अधिकार दिया गया है। बड़े पैमाने पर मदरसा और मिशनरी स्कूल इसी अधिकार के तहत भारत में खोले गए हैं। हालांकि ये अधिकार सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं है, बल्कि किसी विशेष इलाके में अगर भाषाई तौर पर कोई वर्ग अल्पसंख्यक है तो वो भी अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। चलिए अब जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रोचक तथ्य। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज renowned for being the world's longest written constitution in the world, containing 1.46 lakh words. The cost of making the Indian Constitution is 64 lakh rupees. The Constitution was drafted in 2 years, 11 months and 18 days. The Indian Constitution is completely designed and written by hand. The Constitution was single-handedly written by Prem Bihari Narayan Raizada, a master of calligraphy. It took almost 6 months for him to complete the task, yet he did not charge anything for it. By embellishing the borders with art pieces, every page of the Constitution is designed by Nandalal Bose. The original manuscript of the Constitution was written on parchment sheets measuring 16 by 22 inches. It was estimated to have a lifespan of about 1000 years, and the total weight of the original Constitution is 3.75 kg. The original copies of the Indian Constitution, comprising 251 pages in English and Hindi, are securely preserved in specially designed helium-filled cases at the Library of the Parliament of India. हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे देश भारत को महानतम बनाता है।
26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में हमारा संविधान पारित हुआ। आज हम गर्व से इस दिन को संविधान दिवस के नाम से मनाते हैं। अगर आम नागरिक मजबूत होगा तो इससे हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। Now our class students will present a dance. तूने ही सिखाया है संभालता नजारा, अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम करता साहिब मेरे भीमरा, साहिब मेरे स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है।
संविधान है, संविधान है। The most effective way to fight inequality is through education. आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि कतराते हम सबको समुंदर बना दिया, कतराते हम सबको समुंदर बना दिया, सबको अधिकार दिलाकर मुकद्दर बना दिया। पैरों की धूल मानती थी सभ्यता हमें, पैरों की धूल मानती थी सभ्यता हमें, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सबको बराबर बना दिया। Thank you very much. Now it's time to hear our beloved principal, Father Prashant. Respected Sister Shiny, the Vice Principal, Teacher Dolly, Supervisor, all my dear teachers and dear students, good morning. My dear children, I must admit that this assembly conducted by the 9th C class under the able guidance of Hemant sir put up such an informative, apt and lovely assembly on this day, the Constitution Day. For all their efforts and for all that we gained today, learned today, let us give them a big round of applause. They deserve it. In fact, I was listening very keenly because a few things there, what they told us today, I didn't know myself. But the most important thing I liked, I don't know how many of you paid attention to the boy who said at the end. He said, we have such a lovely constitution. All credit to Dr. Bhimrao Ambedkar and other committee members. Altogether there were 22 committees under this Constituent Assembly. And we have such a lovely constitution, each and everything, for all our rights, for obligation, everything. But the boy who said at the end is the most important thing. If we really want our constitution to be alive and active in our lives, then we should be educated. And that is what I also believe, is my conviction. People bear all kinds of persecution, all kinds of pain unnecessarily just because they are not educated. To a large extent, I believe we gained our independence also when our great leaders whom we venerate studied. And when they saw the world and then they saw themselves and they understood how miserable they were, they stood to fight the Britishers and to get our freedom. So that we remain in this same freedom and liberty, this beautiful constitution is given to us.
In the beginning, in the assembly, it was told that government is trying that each and every one of us get used to our constitution, and that's why they have come up with this beautiful program, Har Ghar Samvidhan. Dear children, this book, which should be venerated, will be only on a corner if we don't educate ourselves. Because if we are educated, if we know, if we have the knowledge, then only this book can become useful to us, useful to others, and useful to each person of our country, of our nation. And therefore, as a student, I would appeal that study well. Because if you study well, you will become the great builders of our nation. That is what the Constitution aims at. That is why we are given this freedom and liberty, not to break, but to unite, to build. Study well, dear children, so that one day you will be proud of your country, of your nation. And always respect the Constitution. You know, sometimes we take our Constitution for granted because we have a lot of freedom. Some people even say that it is too much of freedom that is given. But when we compare ourselves to some other countries where freedom is not given, where you cannot open your mouth, where you cannot even look at the others, in such situation, when you compare to a nation like our country, then we understand that what a great vision Dr. Bhimrao Ambedkar and others had when they wrote, they designed this constitution. And therefore, respect it, love it, and use it. May this Constitution Day, which also gives us not only our rights but also reminds us of our duties, help us to live this Constitution, our duties, our rights daily in our life. May God bless each one of us. May God bless our nation. Dare to be wise. I request Tejaswini to propose the vote of thanks. On behalf of Class 9C, I am glad to be here to propose vote of thanks and acknowledge the contribution of all who worked really hard to make this event successful. A special thanks to our beloved principal and all the dignitaries for accepting our invitation and for being here with us. I would like to thank the choir and the complete team to assist this program. I would like to thank all the peons of the school. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated peon staff of our school who are well versed in their job. I would be failing my duty if I did not thank my fellow students who have made this day possible. I would like to thank one and all for being patient listeners and viewers. A sincere thanks to Master Vidnay Rathod and his team of Class 10 to train the students. I would like to thank all the known and unknown hands that contributed for the success of this program. With sincere feeling of gratitude, I would like to take your leave. Be happy, be bright, be you, and have a nice day. Thank you.